7th पे है सर, शायद से। ओके ओके ओके, तो ये फ्यू लेक्चर्स ओनली, तो थियरी खत्म कर दूंगा आज एक्चुअली। अच्छा, पूरा पोर्शन हो पाएगा क्या? क्या पूरा पोर्शन? पूरा पोर्शन हो पाएगा केवीपीवाई के पहले? पोर्शन अभी, पोर्शन तो नाम के लिए कर सकते हैं, इनफैक्ट वही करेंगे एक्चुअली, बट अभी प्रैक्टिस तो इनफाइनाइट है। सबसे पहले तुम लोगों को बेसिक चीजें ये पता है क्या, स्लोप ऑफ ए लाइन क्या होता है? y2 minus y1 दैट इज राइट, जस्ट upon स्लोप। x2 minus x1। अगर ये थीटा है तो स्लोप ऑफ द लाइन इज फंडामेंटली गिवन एज tan थीटा। tan थीटा। ये सबको पता है क्या इन द क्लास? हाँ सर। हाँ ओके। सर। और इसी यही स्लोप ऑफ द लाइन कैन विल आल्सो बी डिड्यूस्ड यूजिंग दिस फॉर्मेट कि x1 y1 एक कोऑर्डिनेट्स है और x2 y2 दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, तो वी कैन, मतलब डेरिवेशन वगैरह का टाइम नहीं है, बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड बेसिकली। y2 minus y1। हाँ, so tan theta is given as basically y2 minus y1, which is this height, divided by x2 minus x1. So this is another way to find the slope of the line joining two points. Is everybody familiar with this much part? Yes Yes sir। sir। ठीक है। Other than this, ये थोड़े schools में पढ़ा है। I got to know that CBSE students have not studied, but ICSE वगैरह ने पढ़ा है। कितने लोग CBSE से हो तुम्हारे क्लास में अभी? मैं सर। सिर्फ एक? सर मैं भी। अच्छा, मैं से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने क्या पूछा? प्रत्युषण सानवी। सर आर्यन। ओके, आर्यन आल्सो। तेरा हो गया ना आज? नाउ स्लोप, तो प्रत्युष सानवी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो तुम लोग रोको मेनली। तो बेसिकली गाइस, प्रत्युष सानवी एंड आर्यन, बेसिकली देखना, कोई लाइन को फिक्स करना है, तो अगर इफ आई जस्ट गिव यू अ पॉइंट थ्रू व्हिच द लाइन इज पासिंग, विल द लाइन बी फिक्स्ड? नो सर। There will be infinitely many lines, of course. In fact, the infinitely many lines को collectively we are going to call them as family of lines, which I'll introduce it by the end of the class. Family of lines मतलब it is collection of all lines passing through a single point. Okay. So if I give only the slope, then will the line be fixed? Only slope is given, then will the line be fixed? Oh sir। तब क्या होंगे? Then another type of family of lines will Parallel। come. All of them will be parallel lines. Yes. Okay. So to make the line fixed, what all things do you need? Point and slope। बोथ सर। तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ही बन जाएगा सीधा। Yes. So now the idea is I want to make, yes, equation ढूंढना है। equation ढूंढने के लिए line, fixed line चाहिए। तो fixed line के लिए एक slope और एक point given है, तो line fix हो जाएगा। हाँ यस सर। सर हो जाएगा। Okay. तो अगर point है x1, y1 और slope of the line m है, तो equation of the line मतलब it is sort of like locus of points है। It is locus of any general point x, y, which will satisfy certain condition. What will be the condition here? Any relation that you can predict between x, y, x1, y1 and m? तो y minus y1 दो पॉइंट है ना, हाँ, दो पॉइंट से हम लोग स्लोप का फॉर्मुला कर सकते हैं। यस, y minus y1 upon x minus x1, that should be same as what? m into x minus x। That's it. तो x minus x1 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज कॉल्ड अ स्लोप पॉइंट फॉर्म। नाम इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये है कि if a slope and a point is given, you should be able to find the equation of a line. Similarly, can you guys predict 2-point form? Like as in if 2 points are given, then also the line will be fixed. हाँ सर। Then also the line will be fixed. If I assume any general point on the line as x, y, so what will be the relation between x, y and तो these उसका two? भी सेम ही रहेगा। Same ही रहेगा। y Slope minus कितना लेंगे? स्लोप ही ढूंढ लेंगे ना हम। Slope ही ढूंढ लेंगे। 2 पॉइंट दिए तो स्लोप ही तो मिल जाएगा, y2 minus y1 by x2 minus x1. That is again same as just like the previous case, y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 by x2 minus x1. Okay. Is there any other way to fix a line? There are other fancy ways to them, and they're quite famous. One of them is y-intercept is given. Y-intercept is given. Only हाँ y-intercept.
0 comma c, and the slope m is given. So basically y-intercept is 0 comma c, y-intercept is 0 comma c और c. तो इसका equation क्या होगा? Can you tell y me? is equal to mx plus c. Correct. Y equals to mx plus c. This is one of the most famous of them all. Y equals to mx plus c. ये समझ में आया क्या सानवी, आर्यन एंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके. अच्छा, और एक है, और एक फॉर्म है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. डबल इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होगा? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में नाम में लिखा है एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट सर. ऐसा एक्स एंड देंगे। वाई इंटरसेप्ट दोनों देंगे. एक्स इंटरसेप्ट मान लो a,0 है, वाई इंटरसेप्ट मान लो 0, b है. तो कैन यू थिंक हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन? We can find the slope We can find the slope. What will be the slope here? minus Minus b by a. minus b by. b minus 0 by 0 minus a. Right? Yes sir. So what will be the equation? Can we find slope? अगर मिल गया और point तो given है ही a,0 या 0, b कोई भी ले सकते हो. The equation of the line ढूंढ सकते हो. It can be symmetrically written in this manner. The equation of the line can be symmetrically written in this manner. X by a plus y by b is equal to 1. Correct. X by a plus y by b is equals to 1. So these are few of the various forms of the line. Slope intercept form, yeah, slope point form, yeah, the 2-point form. Okay, these are the names given to respective form. These names are quite obvious actually. 2-point form, slope intercept form, double intercept form. तो पहले इसको जो भी बोर्ड पे लिखा है, जो नहीं पता है कॉपी कर लो. एक सेकेंड, आई जस्ट गेट बैक टू इट. Okay, there are two more तो forms. वन क्या है मतलब स्लोप ऑफ लाइन में? कौन सा वन? तो इसमें थर्ड वाले में इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ने अभी जो किया ना x by a plus y by b. वन, द नंबर वन. हाँ तो समझा, डिराइव किससे? इसे ही किया ना स्लोप पॉइंट फॉर्म वाले इक्वेशन से. स्लोप पॉइंट फॉर्म से किया. पहले स्लोप ढूंढा, वो माइनस b by a निकला. ये जो लिख रहा हूँ दिख रहा है क्या? इसे टू स्मॉल. हाँ सब दिख रहा है. ओके, तो फिर y minus y1 को b ले लेते हैं अपॉन x minus x1 इज इक्वल्स टू स्लोप. ऐसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करेगा तो ये आता है. डिराइव नहीं कर रहा हूँ बिकॉज वी आर लैकिंग टाइम. हम लोग नॉर्मल लेक्चर्स में डिराइव करेंगे सब कुछ. यस. बेसिकली फॉर्म्स ऑफ द लाइन इज द क्वेश्चन. थैंक यू. चलेगा. नए फॉर्म से पढ़ेंगे. दो और फॉर्म है जो थोड़ा सा आई डाउट 10th पे पढ़ाया होगा. लेट मी नो अगर हो गया तो. हो गया हाँ sir. सर हो गया. ओके, नेक्स्ट ये है नेक्स्ट फॉर्म ऑफ ए लाइन. इस फॉर्म में परपेंडिकुलर डिस्टेंस p फ्रॉम द ओरिजिन दे रखा है और इंक्लिनेशन ऑफ द परपेंडिकुलर दे रखा है. तो विल द लाइन बी फिक्स्ड? और परपेंडिकुलर हाँ, दे sir. रखा है और अल्फा भी दे रखा है. मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, 3, 4 रहेगा तो क्यों नहीं फिक्स होगा? हाँ सर फिक्स होगा. p देखो, अगर मतलब p और अल्फा में से कोई एक ही देगा मतलब सिर्फ p दे रखा है तो लाइन फिक्स होगा क्या? सिर्फ p दे रखा है मतलब No sir. नो सर. ऐसे बहुत सारे इधर भी lines हो सकता है left line. side भी हो सकते हैं ऐसे, और मतलब p डिस्टेंस बहुत सारे हो सकते हैं. तो इनफैक्ट अगर अल्फा भी देना पड़ेगा. ओके, नाउ इसका इक्वेशन ऑफ ए लाइन ढूंढना है तो कैसे ढूंढूं? इसका लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढना है?
स्लोप तो है स्लोप कैसे है बताओ? स्लोप सर, उसका वो एक ये है ना, मतलब प्रॉपर्टी है ना, मतलब परपेंडिकुलर कॉस थीटा रहेगा अगर साइन वो लाइन। कॉस अल्फा साइन अल्फा कर सकते हैं। गुड वन इब्राहिम। कॉस अल्फा sin अल्फा कैसे करूं? अदर सोर्स ऑफ थिंग और सर फिर एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट मिल जाएगा। व्हाट इब्राहिम इज सेइंग इज ये जो लेंथ है वो एक्स इंटरसेप्ट रहेगा। हाउ शुड यू फाइंड दिस लेंथ? पी कॉस अल्फा। p पी cos को अल्फा नहीं कंपोनेंट्स में होगा, डिवाइड करके। p sin अल्फा भी नहीं होगा। जरा सोचो एवरीबॉडी। हाइपोटेन्यूज सॉरी सॉरी पी कॉस है, ये अल्फा है। अभी इसका वैल्यू अगर x मान लेते हैं, फिलहाल x मान लेते हैं, तो क्या होगा? cos अल्फा क्या होगा? कॉस अल्फा तो p cos अल्फा तो p by x बाय होगा। x होगा ना। हाँ तो सर, x क्या होगा? पी बाय कॉस अल्फा। p बाय cos अल्फा। p by cos अल्फा। p by cos अल्फा या p sec अल्फा। ये समझ में आया क्या अदर्स? हाँ सर। Can you predict what will be the y intercept? ये कैसे करते हैं? p by sin अल्फा। वो कैसे कैसे रिड्यूस करेंगे p by sin अल्फा? कैसे करते हैं? कौन सा एंगल पता चलेगा? ये एंगल 90 माइनस अल्फा। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं तुम्हें? आ गया सर समझ में। व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मिल गया, तो हम लोग वो डबल इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं। x by a प्लस y by b इज इक्वल्स टू 1 और x by p by cos alpha plus y by p by sin alpha equals to 1. और basically by the end of the day the gist of the story is the form is x cos alpha plus y sin alpha अगर p है, so this is also a normal form or a perpendicular form. It's called as normal form or perpendicular form. तो अभी x का कोएफिशिएंट cos अल्फा, y का कोएफिशिएंट sin अल्फा होगा, तो राइट हैंड साइड जो p है that is basically the distance from origin. That is what we can conclude. x का कोएफिशिएंट cos अल्फा, y का कोएफिशिएंट sin अल्फा होगा, तो राइट साइड p will be the distance from origin onto that line. That is the distance from origin onto that line. नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म लिख रहे हो क्या तुम लोग? हाँ सर। Yes, कैसे? sir. एक मिनट। Sure. Let me know once you're done. So depending upon the requirement of the question, we will use the respective form. But to be very honest, all the forms are interconvertible. You can use any form. You can use any form to get the answer. But it's just that respective form use करोगे तो थोड़ा faster आता है answer. That is the only difference. एंटीना है बहुत सारे, तो 3-4 है। Are you done writing? One. Sure, no problem. Editing चल रहा है क्या? Yes sir, done. Okay. Now for example, also straight line के इक्वेशन में x का पावर y का पावर कितना होगा? 1. 1 रहेगा हमेशा। एक सेकंड। ये इक्वेशन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस केवीपी में तो आते नहीं है, बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग इसको मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूं? व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? Y equals y mx minus plus c. y equals to mx plus c. That is slope intercept form. How should I convert into slope intercept form? सर बस राइट पे Y- शिफ्ट कर दो और कर दो. Isolate y. Yes, isolate y. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? y is equal to Y 7 minus equals x by root 3. By root 3. m की जगह क्या लिखूं? 1 by One by root minus 3. 1 by Minus 1 by root 3. minus 1 minus 1 by root 3 x और xc की जगह क्या आएगा? plus 7 by root Plus 7 by root. Plus 7 by root 3. root 3. Okay. तो just to put it simple, इस इक्वेशन का कोई स्लोप पूछे तो स्लोप क्या होगा इस इक्वेशन का? minus 1 by root minus 1 by root 3. And y intercept क्या होगा? 7 by root 7 by root 3. Okay, that is right. Now in general, वैसे y intercept ढूंढने के लिए एक और तरीका ये हो सकता है कि you can just put x equal to 0 also. In the equation of a line, for y intercept we can just put x equal to 0 because y intercept sir. मतलब x coordinate 0 होगा. तो इस क्वेश्चन में भी x को 0 पुट करेंगे तो भी we'll get the same answer. Okay. Now this is now अगर मैं जबरदस्ती इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोलूं तो can you do it? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब x by something plus y by something होना चाहिए. तो x plus root 3y is equal to 7 हो जाएगा. Divide by तो 7. हाँ तो x by 7 plus y by क्या हो जाएगा? 7 by root 3. 7 by root 3 is equals to 1. So this is called as double intercept form. So we can always convert a particular line into various types of forms depending upon requirement. Achha, now one last thing. Can you express this into normal form? Normal form में notice करने वाली बात है कि x into cos alpha चाहिए, y into sin alpha चाहिए. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में x Divide by 2. that is perfectly correct, plus y into root 3 है is equal to 7. So we cannot just say that cos alpha is 1 and sin alpha is root 3. So divide with क्या करना चाहिए? 2 ना. Divide with 2 करना चाहिए. How did you deduce 2? We know standard values of sin and cos. Standard values of sin. What if they are say 3 and 4? Then if it was 53 Divided by 5. divide with 5. ये भी standard values है to be very honest. अच्छा अगर 13 और 14 रहते तो किससे डिवाइड करना चाहिए? Root of 13 square plus 14 square. Yes, basically hypotenuse से डिवाइड कर रहे हैं. Just like sin theta cos theta जैसा ही कन्वर्ट कर रहे हैं. ये बाकी सबको समझ आ रहा है क्या? हाँ सर. तो हाँ इसको थोड़ा सा यूज करेंगे. We'll get back to this part in some time. Before that ये right side 7 by 2. ये right side 7 by 2. ये right side 7 by 2. What does this represent? The length of the perpendicular from the origin. Length of the perpendicular from origin onto line. तो ये जो given question है इसका question अगर ऐसे पूछता है कि find length of perpendicular from origin onto this line, then the answer would be 7 by 2. I am going to make it into a formula, but फिलहाल के लिए इतना समझो what I am trying to say. Every form has a particular usage of it. All the forms are interconvertible. Okay. पहले जो भी बोर्ड पे है तुम्हें लिखना है तो लिख लो. I'll just put it in a better formula type of question. कॉपी कर रहे हो तो करके बताना, नहीं कर रहे हो तो भी बता दो. 1 मिनट. श्योर तुम लोग नहीं कर रहे हो दिख रहा है मुझे. तुम लिख के इतना फास्ट. तुम लोग तो फोटो भी निकाल सकते हो. बड़ा है. यहाँ से इसका पीडीएफ भी बनता है. तुम लोग डिस्कवर किया क्या? यहाँ पे ऐसे and then save as. ओके सेव एज पीडीएफ करके फिर लेकिन सर आप like 10 ही पेज ना आप आगे जाके erase कर सकते हैं. हाँ नहीं 10 पेज का सेव कर लेंगे फिर से erase करेंगे. हो गया तो बताना ऑनलाइन स्टूडेंट्स. 1 मिनट. Sure, no hurry. Just telling.
Done, sir. None? No, sir, not done. तुम लोगों को गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर्स कितना आता है? सर एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब आता है। लाइक आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है? आयोटा का क्या स्क्वायर multiply? तो -1 हो जाएगा हाँ वो तो है। और कुछ नहीं। सर अच्छा ये डू यू गाइस नो दैट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर वेक्टर्स? उतना नहीं पता। ठीक है छोड़ो। हाँ सर, मतलब एक प्लेन पे रियल और एक सर plane कल पे दीपक सर शायद से imaginary। पढ़ाएंगे हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर ब्लू हाउस में। Yes, sir. सर 5 मिनट पहले वाला पेज दिखाओ। बोर्ड्स के लिए पढ़ा रहे हैं कि आईआईटी के लिए? The board. सर बोर्ड लेक्चर है। तो उसके थ्रू एक लाइन ओके ax plus by plus c equals to 0 इसके लिए हम लोग अभी वेरीफाई करने वाले हैं गाइस. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. सबसे पहले few basic things. I'll just go very fast. स्लोप ऑफ दिस लाइन क्या होगा? कैन यू गाइस ओरली डू दैट, लाइक रीअरेंज करके बता सकते हैं स्लोप क्या होगा? y इक्वल्स टू के फॉर्म में लिखोगे तो -a by y -a by b माइनस a by b इज करेक्ट. कैसे ओरली कर सकते हैं? ax और c उस साइड चला जाएगा. ax एंड c विल गो टू द राइट हैंड साइड. ax एंड c राइट हैंड साइड जाएंगे तो और b को डिवाइड कर दोगे तो y इक्वल्स टू mx plus c के फॉर्म में हो जाएगा. ओके y इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का? -c by So minus c by a. -c by माइनस b by a की b. b B, sir. B. x को 0 पुट करना है. x इंटरसेप्ट क्या होगा इस लाइन का? माइनस c by a. ओके अच्छा. नाउ एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन, एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन कैसे लिख सकते हैं? अब देखो एनी लाइन पैरेलल टू दिस लाइन मतलब क्या चीज सेम रहेगा उस लाइन का? स्लोप सेम रहेगा। Slope. स्लोप सेम रहेगा. सो x और y का ax plus by ही रहेगा. ये समझ आ रहा है क्या? हाँ सर। प्लस के 0 प्लस के c की जगह k हो जाएगा. दैट इज द ओनली डिफरेंस. अच्छा नाउ डू यू गाइस नो दैट फॉर परपेंडिकुलर लाइंस what happens with what is the relation between slope? Did I tell or not? I सर don't know. -1 होता है ना Minus sir, Negative product of one. slopes is minus sir. -1. मल्टीप्लिकेशन। ये स्कूल में वगैरह हो गया ना इतना हाँ basic? सर। हाँ sir. हाँ सर. तो अगर इसका परपेंडिकुलर लाइन कैसे होगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस कैसे रहेगा? ये उसका देखो स्लोप तो -1/n स्लोप उसका कितना हो जाएगा? स्लोप उसका -1/n B by a. माइनस 1/m. तो इस क्वेश्चन में क्या होगा? ax plus by है, इसका स्लोप माइनस a by b है, तो उसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा? B by a. B by by b by a. तो लाइन का इक्वेशन कैसे होगा? कैन यू गाइस प्रेडिक्ट? परपेंडिकुलर लाइन b by a होना चाहिए, तो bx minus ay करके लिख रहा हूं. प्लस k इज इक्वल टू 0. यहाँ तक समझ आ रहा है क्या? yes sir। हाँ सर. अच्छा बोलो कैन यू रिपीट? व्हाट डिड यू आस्क? गर्ल्स बॉयज? हेलो. Sir, we said yes. अच्छा यस. तेरा नाम क्या? हु इज स्पीकिंग? Sir, Rishika. हाँ. अरे वो आई कांट सी द नेम टुडे. माय मोबाइल इज इन माय पॉकेट. ओके इशिता, नेक्स्ट वन. इसको कैन यू गाइस कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल फॉर्म? लेट अस ट्राई टू डू दिस. नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ax plus by is equals to minus c. फिर किससे डिवाइड करना पड़ेगा? -c. Under root a square plus root a square plus b square Sorry. Under root a square plus b square. अंडर रूट Sorry. a square plus b plus square. b square। तो a अंडर रूट a square plus b square से डिवाइड कर देते हैं into x plus b into a y is equals to minus c into root of a square plus b square. इसको eventually x cos alpha plus y sin alpha is equals to p के साथ कंपेयर करेंगे. So what I want to conclude is for the line ax plus by plus c is equals to 0, what is the perpendicular distance from origin? minus c by root a square plus b square। Yes. In fact मॉड्यूलस कर देंगे for obvious reasons.
So perpendicular distance is given as modulus of c divided by root a square plus b square. Is this clear? Yes, sir. Okay. Achha, now I want to write more things regarding perpendicular distance. Achha, other than this, अभी ये वाला easy है. ax plus by plus c1 equal to 0 और ax plus by plus c2 is equal to 0. What is special about these two lines? Slope same है, parallel. Parallel. Parallel lines. So parallel lines के बीच में I can definitely find the distance between parallel lines. Okay. Yes. Now Yes. what I'll do is कहीं ना कहीं तो origin रहेगा, कहीं ना कहीं तो origin रहेगा. Origin से पहले line का distance कितना होगा? minus C1 by under root a square C1 by plus root B a square. square plus B. Origin से second वाले पे perpendicular distance होगा C2 by root of. तो ये जो perpendicular दोनों lines के बीच का distance कितना रहेगा? Distance between parallel lines? Difference between the C1 perpendicular minus distance C2. from origin. C1 minus C2. So distance between parallel lines is given as modulus of C1 minus C2 divided by root of a square plus b square. तो एक और प्रॉपर्टी थी ना स्लोप की, पैरेलल स्लोप्स के लिए अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ मिलता है ना? मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ नहीं यार, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलने का है, डिवाइड करेंगे तो -1 मिलने का है, बट हाफ का कुछ नहीं है. नॉट दैट आई नो ऑफ एटलीस्ट. ओके, जो भी बोर्ड पे लिखा है, स्पेशली द लास्ट टू आर बेसिकली द फॉर्मूले एंड द लेफ्ट मोस्ट जो लिखे है वो दैट इज ट्रीटेड लाइक जनरल नॉलेज. स्लोप ऑफ द लाइन, y intercept, x intercept and all. Distance between parallel lines and distance from a point from origin onto that line. Specs तीनों के बाद से. I also have specs like yours, but more like hers. कितना है तेरा साइड? Like तेरा कितना है? मेरा भी -3.5 -3 है. ठीक है. हाँ नहीं करवाया, मुझे लगा नॉट सो नीडेड. हाँ इधर लुक्स एक्सपायर वैसे भी. हाँ नाउ यू केयर व्हाट हो गया तो बताना ऑनलाइन गाइस. क्या नेम मतलब ओजी ऑनलाइन गाइस. क्यों तुम लोग ओजी हो? अच्छा आई10 सब में तो ऑनलाइन पहले आया ना. तुम्हारे लिए तो कहाँ ना मेरे लिए. सर अप्रैल में स्पेक्ट्रम करके. बोलो बोलो. सर वो जो m1 into m2 equal to -1 है वो परपेंडिकुलर टू द लाइन है ना? यस, टू लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो m1 m2 -1 होगा. और सर ये मॉड्यूलस ऑफ c1 minus c2 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a square plus b square के बारे में आप बता सकते हो वापस? वो कैसे बता रहा हूँ कि C से पूरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, लाइक ऑरिजिन से पहले लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस माइनस ऑरिजिन से सेकंड लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल गिव अस द आंसर. हाँ सर, हाँ समझा. समझ गया ना? ओके सर. ओके. और किसी को कुछ पूछना है क्या? नो सर. ओके, लेट मी नो गाइस इफ यू आर डन. Done, sir.
Done everybody? Yes, sir. Okay. Next चीज तो देखो तुम लोग थोड़ा सोच के बताओ इसको कैसे कर सकते हैं। x1, y1 है और ये लाइन है ax plus by plus c is equals to 0. मुझे can you अच्छा the task is to find the perpendicular distance from the point onto this line. This is the task. The task is to find this distance. कैसे ढूंढे? What thought do you have? सर एक लाइन बनाएंगे पासिंग थ्रू x1 y1 एंड पैरेलल टू ax plus by plus c और फिर Fair enough. सर What is saying is एक लाइन बनाएंगे passing through x1 y1 and parallel to this. इसका पैरेलल कोई भी लाइन कैसे रहेगा? ax plus by plus c ax plus by का फॉर्म ax plus by तो रहेगा ही, प्लस k क्या लिख रहेगा? लेंगे k k रहेगा. k ढूंढने का कोई तरीका है क्या? What is special about this line now? That line is passing through x1, y1, right? यस सर If it is passing through x1, y1, x1, y1 will satisfy this. So can I say ax1 plus by1 plus k has to be 0? yes sir. Or in other words, k का value लिख सकता हूँ मैं minus ax1 minus by1. अच्छा. Now these two are parallel lines. So what is the distance between two parallel lines? C1 minus C2. C1 minus C2. तो इस क्वेश्चन में C1 minus C2 क्या होगा? 0. इस क्वेश्चन में C1 minus C2 क्या होगा? Modulus of C1 minus C2 divided by root of a square plus b square. C1 की जगह k लिखेंगे और C2 की जगह minus c लिखेंगे और k की जगह ये पूरी चीज सब्स्टिट्यूट कर दूंगा minus ax1 minus by1 और minus c. तो minus b हट के eventually we'll end up with this formula ax1 plus by1 plus c divided by root of a square plus b square. This is the formula perpendicular distance from the point onto this line. So this is one of the most useful formula of straight lines. Distance from a point onto a line. Derivation समझ में आ गया ना? प्लस c कैसे होगा? Yes, sir. प्लस सी कैसे हो? बिकॉज दो बार माइनस आ गया तो माइनस हटा दिया. अच्छा हाँ हाँ माइनस ठीक है. दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और एक फॉर्म है लाइन का वो भी आज करा दूंगा. जहां पे भी डिस्टेंसेस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन आए, जस्ट थिंक अबाउट दिस फॉर्मूला. डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड ए लाइन जहां पे भी आ जाए. सर 2 to 18 के लिए. हाँ बोलो. सर वो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो तो bx plus ay plus k equal to 0 होना चाहिए ना? क्यों परपेंडिकुलर है कि पैरेलल है वो? हाँ सर पैरेलल है. अच्छा हाँ हाँ सर समझा. Okay guys, let me know if you're done. एक मिनट. Sure. दो तीन छोटे मोटे चीजें हैं फिर वो करके लेट अस सी कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं. क्या? हाँ हाँ होता है अभी नहीं हो रहा है. ये होता है क्या? एल्बो भी होता है. अरे ये सब सबको होता है. तुम लोग क्या करें?
तुम लोग ये कर सकते हो क्या? I don't know, like someone. Touch it back. I don't know what, but ये कर सकते हैं। Oh, ठीक है। It's not an achievement, it's सब ऑनलाइन के तुम लोग को हो गया तो बताओ यार, हम लोग वेट कर रहे हैं और ये लोग पका रहे हो जल्दी जल्दी। Hey, no. Please. No, enough. जल्दी बताओ। डन सर। हाँ सर हो गया। ओके, अनदर थिंग, फॉर्म ऑफ ए लाइन बताने के पहले ये एक्चुअली आज ही एक हाउस को कराया था, बट स्टिल दो लाइन से पहले लाइन का स्लोप m1 है, दूसरे लाइन का स्लोप m2 है, देन एंगल बिटवीन द लाइंस tan theta. Tan theta angle between the two lines is given as modulus of m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. इसका डिराइवेशन रफा दफा बताता हूँ, समझ में आएगा तो ठीक है, else take it easy. बेसिकली कुछ खास है नहीं, बेसिकली एंगल बिटवीन द टू लाइंस के लिए पहला लाइन का इंक्लिनेशन अल्फा मान लो और दूसरे लाइन का इंक्लिनेशन बीटा मान लो। तो पहले लाइन का अल्फा बीटा है, तो पहला लाइन का स्लोप tan अल्फा होगा और दूसरे लाइन का स्लोप tan बीटा होगा। तो what can I say, what is the angle between the two lines? Theta. Tan of beta minus Beta alpha. minus alpha. Tan is just beta minus alpha, theta is The just formula. beta minus alpha. Yes. What if I apply tan on both sides? Tan theta क्या होगा? Tan beta minus tan alpha. हाँ, tan beta minus alpha को expand करें, सबको आना चाहिए, तो हाँ, क्या सर। बन जाएगा वो? Tan beta minus tan minus alpha. tan alpha. upon M1 minus 1 plus M2 tan tan beta beta tan tan alpha. Yes. Then this formula looks exactly like that. Modulus is because अगर नेगेटिव आ गया तो भी it doesn't matter, because इस दो एंगल्स के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री से आए या 120 डिग्री से आए, it is the same. Tan theta का वैल्यू -√3 आए या +√3 आए, it just implies that one of the angle is 120, one angle is 60. So by default we'll take it as an acute angle. So we can just call it as angle between two lines. Angle between lines. This is the formula, angle between. The training. Yeah, of course. Angle between lines, simple concept है, याद रख लो, formula is very important and it's very similar to tan A minus beta formula. चलेगा। तुम लोग ऑफलाइन ऑनलाइन लेक्चर में अगर ऑनलाइन स्टूडेंट्स की स्क्रीन ऑन करेंगे तो और मजा आएगा, अपना वीडियो ऑन। सर आप इस पे भी देख सकते हैं। बट ये इसका एक्चुअली मोबाइल दूर करने पर इनको सुनाई नहीं देता, इस पे देख सकते हैं बट स्क्रीन चला जाएगा ना। नहीं चला। हाँ हम लोग सोचेंगे हाँ, स्प्लिट स्क्रीन अभी वो पता नहीं कैसे हो गया तो बताना ऑनलाइन गाइस, जस्ट कीप मी अपडेटेड। डन सर। डन अक्षत, और किसी का? Yes, sir. Done. Everybody? Okay. Next one. See, angle between two lines, इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे which are very easy to solve. like जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, if I just ask you find the angle between these two lines, तो क्या करना चाहिए? Find slopes and then use for. Find slopes. Can you tell me the slope of the first one? -2 स्लोप कितना आएगा फर्स्ट वाले का? -a/b. minus स्लोप कितना होगा पहले वाले का? -2. -2 -2. दूसरे वाले का?
-1 minus half. minus half. So m1 minus minus m2 divided by 1 plus m1 m2. So that is the way to solve it. I hope you got the idea what am I doing. Yes. Tan theta equals to 3/4 या theta equals to 3/4. This is one thing. Okay. Distances जहाँ पे भी involved हो that वैसे कर लेना. जैसे So कि theta क्या होगा? Theta. tan inverse. Theta will be tan. Tan Yes. उससे जाके tan inverse करके लिखते हैं. हाँ ये हाँ. फिजिक्स वगैरह में एनकाउंटर किया होगा ना. हाँ सर. Actually मैंने गलती से theta is equal to 3/4 सुना. क्या क्या? मैंने theta is equal to 3/4 सुना. Okay, okay. Yeah, I hope you got it now. Yeah sir. Next, एक और चीज. नहीं मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म है. ठीक है मैं यूज करता हूँ. सीधा थीटा को 37 लिख सकते हैं ना. क्या थीटा को 37 37 डिग्री हाँ वो एचसी वर्मा में ही यूज कर सकते हैं गाइस. ऑनेस्टली रियल लाइफ में हाँ वो पता है थोड़ा. गाइस सर अप्रोक्सीमेट में. ओके ये क्वेश्चन करना है एक. Yes, yes. Do you guys realize that there are 4 lines given? Yes. Yes, sir. There are 4 Yes, lines sir. given. Combinations लेके प्लस 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 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 4 लाइन से चारों लाइंस रोम्बस बनाते हैं. ये प्रूव करना है. What is 90 degrees, Aparna? क्या 90 degrees पे आ रहे हैं? Like चारों lines. कैसे 90 डिग्री? How? सब slope निकाल कैसे मतलब वो तो बोल रही बार बार. Like elaborate with numbers. Like where like यहाँ पे. फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या है? गलत. फर्स्ट लाइन का स्लोप क्या होगा? माइनस ए बाई बी. सेकेंड लाइन का भी स्लोप माइनस ए बाई बी. या थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन के स्लोप क्या आएंगे? ए बाई बी आएंगे. इससे क्या कंक्लूड कर सकते हो कि कौन सा डायग्राम बनेगा? पैरेललोग्राम for sure. I hope this much everybody is clear that this is a parallelogram for sure. Yes, Question sir. answer parallel. Okay. तो रोम्बस प्रूव करने के लिए क्या करने का प्लान है? साइड्स इक्वल होता है. Sides are equal. What sides are equal? Sides are equal. Sides are equal बोलना easy है, करना मुश्किल है. because sides ढूंढने के लिए you need to find vertices. ऐसे technically speaking vertices ढूंढते थक जाओगे. because vertices ढूंढने के लिए we have to simultaneously solve these equations, which is a tedious So process. then diagonal. So diagonals को Diagonals equal के prove लिए करेंगे. diagonals are perpendicular to each other. That is also right thought. But diagonals perpendicular prove करने के लिए भी AC और BD वर्टिसेस चाहिए ना. vertices ढूंढना पड़ेगा. There is also another special property of a rhombus. In a rhombus, distance between parallel sides same रहता है. Distance between parallel sides same रहता है. Like here, can you find the distance between the first and the? Sir, हाँ बोलो. सर तो मतलब हम एक साइड का स्लोप ढूंढ लेंगे और उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस बनेगा उसको दूसरा स्लोप ले लेंगे. नहीं यहाँ पे पैरेलल साइड्स कौन से हैं? 1 2 3 4 लाइंस में से
सर 1 2 और 3 4 1 2 पैरेलल है और 3 4 पैरेलल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हाँ 1 2 के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा? कैन यू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 1 एंड 2? डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस C1 minus C2। हाँ, तो C1 minus C2 यहाँ पे C minus of minus C 2C हो जाएगा upon root of A square plus B square। What is the distance between the other same other 2c 2C. again 2C? Since the distance between parallel sides is exactly same, therefore it is a rhombus। हाँ इजीली हो गया, बस ये नया प्रॉपर्टी है, इसी के चक्कर में इंट्रोड्यूस हो गया। rhombus में distance between parallel sides are the same, and इसी चक्कर में ये भी distance between parallel lines एक क्वेश्चन में भी यूज हो गया। But I hope you got the method, online students। यहाँ पे एक्स्ट्रा फोन है क्या? मेरे फोन का चार्ज खत्म हो गया। चार्जर है बट ये क्लास में यूज हो रहा है ना। एक सेकंड। हाँ ज्वाइन करना, मैं तेरा मोबाइल क्यों होस्ट बनाना पड़ेगा? अच्छा आपका ये हाँ मेरा तो लॉकडाउन ही रहेगा ना। अगर आपको अपने आप को म्यूट करो ना बस। म्यूट करने से आपका आवाज उतर जाएगा, फिर इससे बाहर आएगा। ओ ऑडियो डिस्कनेक्ट कर हाँ तो ज्वाइन कर लिया। ओके गाइस तुम्हारा हो गया क्या लिख के तो बताना। एक मिनट हाँ श्योर श्योर, जस्ट कीप मी अपडेटेड। Sir, I got disconnected temporarily. Can you once again explain why it is a rhombus? Because distance between parallel sides is the same. Sir, it is, so you proved that by distance formula? Yes, yes. I have proved that distance between line 1, line 2 and distance between line 3, line 4 is the same. So we use distance formula modulus of C1 minus C2 upon root of A square plus B square formula. Okay? Sir, thank you. Okay. Are others done with this? Yes, sir. yes sir Okay. Next. एक और फॉर्म है parametric form or symmetric form. Okay, now this is quite a different type of question and form, and it is actually quite useful. इस form में you are given from which point is the line passing through, so that is x1 comma y1 ऐसे मान लेते हैं, and the inclination theta is also given to us. Inclination theta, rather than using the slope, we'll be using theta mainly. Okay. Now, यहाँ पे, if I want to find another point which is exactly r distance away, from x1 comma y1, can you guys tell me what might be the relation between x1 y1 xy r and the inclination theta? ये horizontal length कितना होगा? x1 minus x x minus x1 होगा।
C कंपोनेंट वाइज सोच सकते हो क्या? mod of x minus x1 ना R cos theta. हाँ, r cos theta. Like ये point x1, y1 है. If I want to find a point which is at a distance of r, then this horizontal component is basically r cos theta, which is also x minus x1. So I can say that x minus x1 is equals to r cos theta. बस मैं cos theta को डिवाइड करके लिख रहा हूँ. x minus x1 by cos theta is equals to r. ये फॉलो किया क्या सबने? हाँ सर. Yes, sir. What about y part? What about the y part? Y minus y1 by sin theta. equal to r sin theta. R sin theta, or y minus y1 divided by sin theta is equals to r. So this is called as the symmetric form or parametric form of a line. This form is especially useful, or you should think about this form when there are distances involved. When equation of a line में एक point से दूसरा point ढूंढना है जो थोड़े distance दूर है. If we are aware that the other point is how far away, if you are aware how far away the other point is from the given point, think about this form. Think about this form. Geometrically seems easy by deriving, but use करते टाइम strike नहीं होता. बस अब से याद रख लो, जब भी distances involved है, try to think about this form. R is the distance. R is the distance between x1, y1 and x, y. Sir, but we had the distance formula, right? So what is the different formula? We had the distance formula when 2 points are given. What if 1 point is given and distance is given? And we are finding the other point. But we can use distance formula also. It is just relatively fast. Like एक question के form में put करूँगा तो you'll get an idea. Once again, let me go. No, guys. Once you're done. Just a second. No problem. Just let me know. सर बोलो. सर मतलब हमने पहले भी देखा कि जैसे P परपेंडिकुलर बन रहा था तो हमने P बाय साइन अल्फा और P बाय कॉस अल्फा देखा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के लिए. वो परपेंडिकुलर था ओरिजिन से लाइन के ऊपर. हाँ सर, तो सर यहाँ पर भी तो सर ये r बाय कॉस थीटा और r बाय साइन थीटा होना चाहिए ना. यहाँ पे ओरिजिन कहाँ इन्वॉल्व हुआ है? ये अच्छा, डिफरेंट सिनेरियो है. ओके सर, तो मतलब हॉरिजॉन्टल से होगा तो फिर वो वैसे होगा. ओके ठीक है सर. सर एक्चुअली वही समझना था कि ये r cos थीटा क्यों हो रहा है, r डिवाइडेड बाय cos थीटा क्यों नहीं हो रहा. यहाँ पे हाइपोटेन्यूज r है और x कंपोनेंट r cos थीटा होगा. उस वाले डायग्राम में p was not the hypotenuse actually. ऐसा था, ये p था और ये हाइपोटेन्यूज था. हाँ 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 सर समझा. यहाँ पे r हाइपोटेन्यूज है. हाँ सर समझ गया.
7:30. हो गया क्या एवरीबॉडी? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। बस इस फॉर्म को कैसे यूज करते हैं मैं एक दो क्वेश्चंस बताता हूँ। राइट, एक क्वेश्चन करना, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3, find the distance of the point 2,3 from the line 2x minus 3y plus 9 equals to 0. Find the distance of the point 2,3 from the line 2x minus 3y plus 9 equals to 0. अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं? वो फॉर्मूला यूज करते हैं ax1 plus by1 plus Yes, we have a formula. Okay. Now the further question is measured parallel to the line 2x minus 2y plus 25 equals to 0. Measured parallel to 2x minus 2y plus 25 equals to 0. Just be creative. There are different methods to solve this question. तुम लोग अपना अपना दिमाग लगाओ. क्वेश्चन नहीं समझा? ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग को क्वेश्चन समझा क्या? तो सेकंड पार्ट मतलब मेजर्ड पैरेलल क्या? अभी देखो 2,3 एक पॉइंट है, कहीं ना कहीं तो रहेगा, और एक लाइन है 2x minus 3y plus 9 equals to 0. इसका डिस्टेंस इस लाइन से ढूंढना है. अगर इतना ही बोलते तो आंसर होता परपेंडिकुलर, आंसर होता ये. बट इस बार वो नहीं बोला है. इस बार क्या बोला है? देयर इज एन अनदर लाइन 2x minus 2y plus 25. तो 2x minus 2y plus 25 कोई और लाइन है. 2x minus 2y plus 25 equal to 0 कहीं और है वो. यहाँ पे डिस्टेंस हमें मेजर करना है पैरेलल टू दिस. हमें डिस्टेंस मेजर करना है 2,3 का पैरेलल टू दिस. ये डिस्टेंस ढूंढना है. Did you guys get this now, online students? यस Yes, sir. क्वेश्चन समझो पहले. क्वेश्चन ही नहीं समझा तो नो पॉइंट. सर। बोलो. सर वो जो दो लाइन है वो कट कर रहे एक दूसरे को, वो पता कैसे चलेगा? कौन से दो लाइन कट नहीं करते, कौन से दो लाइन कट करते एक दूसरे को? अरे which two lines cut each other and which two lines won't cut each other? so parallel lines don't cut. Yes, parallel lines don't cut each other. नहीं सर, वो जो जैसे अगर मैंने उसको पैरेलल बना दिया दोनों लाइंस को तो तेरी मर्जी थोड़ी है, यहाँ नंबर्स की मर्जी है. ये दोनों. अच्छा हाँ 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 सर हाँ. ओके, जस्ट 2 minutes सोचो और जस्ट क्रिएटिवली सोचो. देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. पहले क्वेश्चन का ही मतलब किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ. तो आइडियली में रहता है ना. हाँ
सुबह लेक्चर नहीं है क्या तेरा? ये आधा ही है कि और रिमेनिंग बाकी है? ये नहीं आएंगे ऐसा? मेरी और मेरे वाइफ मेरी और मेरे वाइफ के पास है वो हार्ट्स लेके, वो तो सब सर आंसर कहाँ करे? चैट डिसेबल्ड है। अरे चैट डिसेबल है तो बोल दे, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं। सर 4√2 आ रहा है मेरे को। करेक्ट है पूरा 2। ओके, एक आंसर आया तो बता सकते हैं क्या व्हाट इज द प्लान? क्या किया तूने? सर वो जो लाइन है दैट इज पैरेलल टू 2x minus 2y plus 25. फेयर इनफ। So it will be of the form 2x minus 2y plus k is equal to 0. Correct. And 2,3 satisfies this equation. Then I got the equation of the line from 2,3 to the line 2x minus 3y plus 9. Yes. So first method, let us call it as first method. What he is doing is he is just trying to find the point of intersection basically. So 2,3 और अगर मुझे point of intersection मिल जाएगा तो what he is saying is distance formula use कर लेंगे। तो point of intersection ढूंढने के लिए दो लाइन चाहिए। पहला लाइन तो हो गया 2x minus 3y plus 9 equal to 0। अभी दूसरा लाइन we can like he is saying दूसरा लाइन given लाइन से parallel है ना, तो 2x minus 2y plus k equal to 0 का रहना चाहिए दूसरा लाइन। और k ढूंढने का कोई हिंट गिवन है? हाँ सर 2 और 3 है ना, तो फिर x और y को पास सब्स्टिट्यूट करना कर चाहिए। तो 2,3 सब्स्टिट्यूट करने पर सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 2 सब्स्टिट्यूट 2,3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 4 minus 6 यस प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये लाइन मिल गया। तो फिर ये दोनों लाइन को वो साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहा है। दैट कैन आल्सो बी डन ओरली इफ यू कैन। थोड़ा सा सोचोगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट ही कर लेंगे। कितना आ रहा है पॉइंट वैसे? 6,7. 6,7. So he found out the point of intersection as 6,7 and then he has used distance formula. Sir, could you please explain this again? Okay, what he has done is, let us call given line है और एक ये 2,3 से जो लाइन बना रहे हैं, ये लाइन का इक्वेशन ढूंढ रहे हैं। इस लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढूं? लाइन के लिए क्या क्या चाहिए? y is equals to mx plus c. y equals to mx plus c चलेगा। और क्या गिवन है उससे सोचो ना। ये लाइन के इक्वेशन ढूंढने के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है ऑलरेडी? ये पॉइंट गिवन है ना, स्लोप पॉइंट फॉर्म। यस, स्लोप पॉइंट फॉर्म। पॉइंट क्या होगा? पॉइंट किसको लेना चाहिए? सर 2,3। 2,3 और स्लोप पे गिवन है क्या? देखो इनडायरेक्टली गिवन है स्लोप। कैसे स्लोप इनडायरेक्टली गिवन है? ये लाइन की खासियत क्या है? ये लाइन किससे पैरेलल है? मतलब मैं हाथ दिखाने की जगह Yes, sir. It is parallel to that other line. Yes, it is parallel to the other line. वो other line का स्लोप कितना है? 2x हाँ, इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस a by b। माइनस a by b करोगे तो 1 आएगा। Yes, sir. ठीक है, तो स्लोप इसका 1 है। तो स्लोप और पॉइंट से लाइन का इक्वेशन ढूंढा। Okay, sir. समझा, thank you. समझ में आ गया ना? फिर लाइन का इक्वेशन ढूंढ के फिर दोनों को सॉल्व कर दिया। Yes, sir. Thank you. ठीक है, ओके। और कोई तरीका सोचा? ओके, ये एक तरीका हुआ। जस्ट लेट अस जस्ट डिस्कस एन अनदर मेथड। इस क्वेश्चन में अननेसेसरी लगेगा, एक तरीका हो ही गया, पर दूसरा तरीका भी समझो। हाँ बोलो, कुछ पूछ रहे हो? सर एंगल बिटवीन टू लाइंस निकाल के फिर r sin थीटा से करते हैं। ओह ग्रेट,
बहुत ही अच्छा thought process है. Let me just solve it that way also. If you're done writing this, I want to make another diagram. Yes, sir. Done? Erase कर दूं फिर ये सब कुछ? Yes, sir. Okay. So another second way. दूसरे तरीके में वो ये कह रहा है कि 2,3 गिवन है, 2,3 गिवन है, 2,3 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं क्या? Perpendicular distance onto this line. How do you find this perpendicular distance? भूल गया क्या इतनी जल्दी? तो कोई नहीं बता रहे ऑनलाइन पीपल. Perpendicular distance from 2, M1 M2 equal to -1. नहीं. Perpendicular distance from a point onto a line. आज एक फॉर्मूला पढ़ाया था. Perpendicular distance from a point onto a line. किसी को याद नहीं है क्या? Perpendicular distance from mod 2,3 पुट कर देंगे. Modulus of 2 into 2 minus 3 into 3 plus 9 divided by root of 2 square plus minus 3 का square. Perpendicular distance from a point x1 comma y1 onto the line ax plus by plus c is equals to 0. Perpendicular distance का formula, substitute the point divided by root a square plus b square. Is that clear everybody else? Yes, sir. तो ये कितना आ रहा है सिंप्लीफाई करके? 4 divided by root 13 आ गया perpendicular distance. Okay. फिर उसने क्या बोला कि हमें ये जो गिवन लाइन है, ये जो दो लाइंस गिवन है, दोनों लाइंस के बीच का एंगल ढूंढ सकते हैं क्या? थीटा. दोनों लाइंस के बीच का एंगल कैसे ढूंढे? tan थीटा. m1 minus m2 upon 1 plus m1 plus m2. m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. इस क्वेश्चन में m1 क्या लेना चाहिए, m2 क्या लेना चाहिए? Slope of 2x minus 3y plus 9. ये सेकंड वाले का स्लोप कितना है? सर सेकंड की पहला. पता नहीं कुछ समझ आ रहा है कि नहीं तुम लोगों को. ऐसे करेंगे tan थीटा. Yes sir. Did you get this? tan थीटा कितना आ रहा है सिंपलीफाई करके? tan थीटा 1/5 आ जाएगा. ठीक है. अच्छा नाउ तो ये थीटा और ये थीटा सेम है क्या? Yes sir. तो ये थीटा भी सेम है और हमें ढूंढना है ये डिस्टेंस. इट इज कॉल्ड इट एज सम p, स्मॉल p. यहाँ पे कोई रिलेशन यूज कर सकते हैं क्या इस ट्रायंगल में? सर sin थीटा लेके. Yes, sin theta is equals to 4 by root 13 divided by p. और sin theta कहाँ से मिलेगा? tan theta मिला. tan theta से sin theta ओरली नहीं कर सकते? 1 by root 26. एक root 26 को root 13 into root 2 लिख सकते हो. root 13 कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p आ जाएगा. तो सेम आंसर. वेल जस्ट एन अनदर मेथड कि एंगल्स tan थीटा से भी हम लोग ढूंढ सकते हैं. तो ये नहीं कह रहा हूं कि तुमसे होना चाहिए, जस्ट सॉल्यूशन समझो एंड अंडरस्टैंड दैट वेरियस वेज ऑफ यूजिंग tan थीटा एंड दैट इनिशियली पिछले सब एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया. पिछले सब में हमने लिटरली इक्वेशंस ऑफ द लाइन ढूंढ के सॉल्व किया. एक और तरीका है जो मुझे बताना है, पहले इसको भी कॉपी कर लो. फिर इससे सेम आंसर नहीं आ रहा ना? क्यों नहीं आ रहा है? सर 4√2 कहाँ आ रहा है? रूट 26 को ओ सॉरी 4 by root 13. सॉरी मैम. रूट 13 कैंसिल हो जाएगा ना फिर. सर यस सर. सर वो 1 by root 26 कैसा है? 1 by root 26 कैसे है? tan थीटा 1/5 है ना, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तो sin थीटा कितना होगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज 1 by root 26. वो खुद से कर सकता है ना ये ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज.
हाँ सर। वन सेकेंड गाइस, हो गया तो बताओ, नहीं समझ में आया तो भी पूछो। चाय बोली क्या? नींद आ रही क्या? एसी ज्यादा हो गया क्या? नहीं, नींद आ रही थी। वन सेकेंड, ऑनलाइन गेट्स हो गया तो जरूर बताओ। हाँ हाँ, बहुत ज्यादा टफ हो गया क्या ये क्वेश्चन, या फॉलो कर रहे हो? सर मुझे थोड़ा टफ लगा। ओके ओके, क्या करें, अभी टाइम कम है, जल्दी जल्दी में कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में सर्कल्स करना का है चैप्टर, वैसे तो बहुत सारा बाकी है, अभी थोड़ा थोड़ा मेन चीजें करा के छोड़ दूंगा। नहीं 11th में ही, अभी तुम्हारा तो चल ही रहा है ना स्ट्रेट लाइन, जीनियस का तो चल ही रहा है, रेड हाउस का भी नेक्स्ट वीक होगा, इस हफ्ते होने वाला था, आज हुआ नहीं। बोर्ड के लिए हाँ तो तुम्हारे क्लास में कोई पर्पल हाउस से है क्या, केवीपीवाई बैच में कोई? एनीबॉडी फ्रॉम पर्पल हाउस, इंडिगो हाउस? हाँ पर्पल इंडिगो भी है। वायलेट है नहीं है ना? ओके ओके, आई डोंट नो ऐसा डोंट जज बट तेरे स्कूल से है क्या? देन हाउ डू यू नो? नहीं, हाउ डू यू नो दैट हाई पिच वॉइस? ओह ओके ओके, डन। अदर्स ऑनलाइन गाइस, बहुत टाइम Yes, लगा रहा है sir. लिखने के। Yes, sir, done. Yes. Okay. Now, another method which I want to mention. हमें बेसिकली ये डिस्टेंस r चाहिए, हमें ये बेसिकली ये डिस्टेंस r चाहिए। ये जो लाइन है, इस लाइन का इंक्लिनेशन जानते हो क्या? इस लाइन का थीटा जानते हैं क्या हम? ऑनलाइन गाइस, इस लाइन का थीटा हम Yes, जानते हैं? sir. हाँ सर। सर कैसे? अभी निकाला। क्योंकि ये लाइन किससे पैरेलल है? 2x minus 2y plus 20. प्लस समथिंग से पैरेलल है। 2x minus 2y देख के स्लोप कितना है? One. सर 1 1. स्लोप 1 है, तो थीटा कितना होगा? सर 45 डिग्री 45 degrees. 45 डिग्री, थीटा 45 डिग्री। अच्छा, और ये हमें r मान लेते डिस्टेंस, तो ये कोऑर्डिनेट्स पैरामीट्रिक फॉर्म से बता सकते हो क्या? 2,3 से
r डिस्टेंस दूर है, 2,3 से r डिस्टेंस दूर है, तो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट सिस्टम करके अभी लिखवाया था, याद है क्या? x minus x1 by cos x theta माइनस x1, x1 क्या होगा 2 2 अपॉन कितना होगा cos 45 1 by root 2 cos 45 degrees, that is right, is equals to y minus y1 3 upon sin 45. sin 45 degrees is equals to r. तो x क्या होगा, y क्या होगा? Sir, x minus 2 is equal to y minus 3 is x equal to minus r. 2 equals to r into 1 by root 2 और x equals to 2 plus r by root 2. समझ आ रहा है क्या? yes sir और y क्या होगा? 3 plus r by root 2. 3 plus r by root 2. अच्छा, तो ये पॉइंट x, y हमने ढूंढा। इस x, y की कुछ खासियत है क्या? Sir, x, y y 0 होगा. इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं, वो satisfy it करेगा satisfies line का the equation. 2x minus 3y plus 9 को सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों को हम लोग इस लाइन के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या होगा 2 times x, तो 2 plus r by root 2 minus 3 times y, 3 plus r by root 2 plus 9 is equals to 0. बस इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो r का वैल्यू 8 by root 2 या 4 root 2 आएगा, and don't you think that is only the answer? yes sir That will only be the answer. So this is another way to solve the question using this form. So this form is actually advisable whenever there are distances involved. That is all I am trying to focus. इसको भी लिख लेना. Try to understand the method how we have used this form of a line to solve the same question. So in the first form, first method ये था कि literally दो lines ढूंढ लिए, solve करके point ढूंढा. Second वाले में point नहीं ढूंढा, but angle between the lines और perpendicular distance use किया. और third method में ऐसे किया, parametric form से. Which one do you think is the easiest? सर अगर इस टाइप के क्वेश्चन वाला लगा क्या उस टाइम पे सर इस टाइप के क्वेश्चन है तो थर्ड इज एडवाइजेबल, बट वो जो लिटरली पॉइंट्स निकाल के किया ये मतलब क्वेश्चन में इजी पॉइंट्स थे तो हो गया जल्दी. हाँ वो तो है एक्चुअली, हर बार अच्छे पॉइंट्स नहीं आते. उस इस बार 6,7 ऐसा कुछ है ना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. यस सर नहीं फास्टेस्ट तो ये है. आई एम जस्ट थिंकिंग फ्रॉम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा इजी है. ठीक है, प्रैक्टिस करके इजी हो जाता है अभी स्टार्टिंग में. एक और क्वेश्चन देता हूँ जो एक्चुअली दूसरे मेथड से कुछ ज्यादा ही लंबा हो जाएगा. आज हमने सब इक्वेशन ऑफ द लाइंस कर लिए, यही लास्ट फॉर्म है. स्ट्रेट लाइन तुम लोगों को सुनाना है क्या? My God, please stop. अरे ये क्या एक्चुअली ज्यादा लोग होते तो टाइम पास करता था. सर आपसे टाइम पास मत करो. नहीं मेरा तो टाइम पास हो रहा है, तुम्हारा टाइम पास होता है. Please stop. वो तो बोल रही प्लीज स्टॉप. अभी क्या बस करी. सर मैंने बस यहाँ पे नहीं जाऊंगा. प्लीज सर. श्योर ऑनलाइन वाले सब कंफ्यूजन देखो. वही I am taking 5 seconds my bell. तेरा लॉग ठीक है क्या? ओह यार ये I thought that is only an iPhone feature. अच्छा it's actually done sir. done. Okay, thanks. Raja, next question. Next खुल गया ना. Okay.
Okay. Question is like, if the line y minus root 3x plus 3 equals to 0 cuts y square equals to x plus 2 at a and b. Find PA multiplied with PB. Find PA multiplied with PB, where the coordinates of P are root 3 comma 0. आज मानसी सानवी तुम लोग एब्सेंट हो क्या? Are you there or in the class? If the line y minus root 3x plus 3 equals 0 cuts y square equals to x plus 2 at a and b, find PA into PB. Find PA into PB. Just look 1 minute सोचो and then we'll discuss it how to do it. I'm just interested in how to do it. Sir, A and B are the points of that intersection. Could you just repeat your question? A and B are the points of that intersection where these two lines are passing. Yeah. This line is एक ही लाइन है एक्चुअली, ये लाइन है सेकंड वाला और लाइन दूसरा वाला लाइन नहीं है, वो समझा क्या? पैराबोला है वो। दैट इज परफेक्टली करेक्ट। जीनियस बैच में मैंने कराया था वैसे। ये लाइन नहीं है वो क्लियर है क्या? Yes, sir. क्यों नहीं है? बिकॉज y का पावर 2 है। वैसे जीनियस बैच स्टूडेंट्स, y इज दिस ए पैराबोला। डिग्री ऑफ y is 2। हाँ, डिग्री ऑफ y 2 है, डिग्री ऑफ x 1 है। हाँ सर, बेसिक वो इसमें क्वाड्रेटिक में भी किया था। क्वाड्रेटिक, रिवर्स क्वाड्रेटिक। दैट्स इट। तो ऐसा इनफैक्ट ये पैराबोला है एक्चुअली, और एक दूसरा एक लाइन है। ये लाइन और ये पैराबोला इंटरसेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट्स पे, a और b पे। 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं a और b पे, और p कोई तो पॉइंट है √3,0। √3,0 somewhere, we are not sure where it is for the timing. Actually we can be sure, but फिलहाल let us say that p is here, and my question is to find distance PA multiplied with distance PB. The question is to find the distance PA multiplied with distance PB. Okay, once again, since distances are involved, what I'll assume is, let us assume that the first distance is R1 and second distance is R2, and we need R1 multiplied with R2. क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पहले? ओके, नाउ ये जो लाइन है PAB, जो लाइन है उसका थीटा पता है क्या तुम लोगों को? डू यू गाइस नो द थीटा ऑफ दैट लाइन? थीटा 30 डिग्रीज नहीं है, 60 होगा। हाँ 60 है, एक्स और वाई इंटरचेंज यहाँ पे जितना। हाँ, तो थीटा इज 60 डिग्रीज। डज एनीबॉडी हैव अ डाउट देयर? नो सर। Okay, theta 60 degrees होगा। Okay, now let me erase few stuff here. Now यहाँ पे theta 60 degrees हो गया। Okay, तो can you tell me इसको क्या लिखना चाहिए? छोटे पॉइंट्स के लिए ऐसे होता है शायद। ठीक है, now पैरामेट्रिक फॉर्म बता सकते हो क्या p के लिए? p का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक फॉर्म x minus √3 by cos 60। cos 60 कितना लिखूं? 1/2 is equals to y minus 0 by sin 60। yes, is equals to r। तो x क्या होगा, y क्या होगा? x is √3 plus r/2। yes, x is √3 plus r/2 and y is r √3/2। √3/2। मैं ये अगर ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, जो अपना कर्व था, शायद y स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 2 था, जो कर्व था y स्क्वायर इक्वल्स x प्लस 2 को सेटिस्फाई कर दूंगा, तो मतलब
there is some particular value of r, for some particular value of r, I'm making this point lie on this curve. I'm making this point lie on this curve. मतलब what does it mean? मतलब ये कौन से value of r के लिए वो lie करेगा? PA और PB. हाँ, मतलब ये पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, मतलब for some particular value of r, this point is going to satisfy this. So for which values of r, can I say for r is equals to r1 and r is equals to r2, this point will lie on that. मतलब r का वैल्यू अगर मैं r1 लूंगा, r का वैल्यू अगर मैं r1 लूंगा, so p से r1 डिस्टेंस जाएंगे तो पॉइंट a मिलेगा, which is lying on the curve. p से r2 डिस्टेंस जाएंगे तो भी ये मिलेगा. इन अदर वर्ड्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r को सॉल्व करेंगे तो इसके रूट्स क्या आएंगे? R1 and R2. इसके रूट से r1 एंड r2, इसके रूट से r1 एंड r2, और हमें ढूंढना क्या है? C by multiplication. Product of r1 into r2. So हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स याद है क्या क्वाड्रेटिक का? C by. c by a. So that will become minus of 2 plus root 3 divided by 3 by 4. In fact, of course, for obvious सर reason, इसका मॉड लेंगे ना? मॉड लेंगे. यस, नेगेटिव आने का रीजन ये है कि एक्चुअली एक पॉइंट, मतलब एक्चुअली रूट 3,0 अंदर लाई करेगा. एक आर नेगेटिव रहेगा, एक आर पॉजिटिव रहेगा, मतलब एक पीछे साइड जाएंगे, एक आगे साइड आएंगे. वेल, इट डजंट मैटर. ये मेथड समझ में आया क्या कैसे कर रहा हूँ? मतलब जस्ट कीप एन आई कि डिस्टेंस फॉर्मूले रहेंगे तो ट्राई यू कैन थिंक ऑफ दिस फॉर्म. और ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे करा सकते, बट वी आर शॉर्ट ऑन टाइम. Do you understand concurrent lines? Do you understand the word concurrent? Yes. Yes. All the lines are meeting at the same point. Online students जानते हो क्या concurrent line? Yes sir. सर concurrent lines ही family of lines में आएगा ना? Yes, correct. Family of lines और इनसे 3 से ज्यादा, 2, 3, 4, 5 से ज्यादा. टाइम देख रहा था. टाइम कितना हुआ? Sir, 8:07. Okay, thank you. Is it? Are you done writing? एक मिनट. Sure. Almost. Sure. Done, sir. Yes, sir, done. Okay. ये जस्ट कैसे करना है बस बता दो. y इक्वल्स टू x+7 एक लाइन है. एक नया लाइन ढूंढना है, मतलब एक नया लाइन ढूंढना है. ये नया लाइन जो इससे 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो कैसे ढूंढे? वही वो tan थीटा वाला कर सकते हैं. यस, ये नया लाइन ढूंढने के लिए बोल रहा हूँ कि नया लाइन ढूंढने के लिए हमें लाइन, इस नए लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन देखो क्या दे रखा है.
इट इज डेफिनेटली पासिंग थ्रू 1,8, दैट इज ट्रू। तो ये लाइन स्लोप m है, तो m ढूंढ सकते हैं क्या? Yes, sir. कैसे? Tan theta equals Tan m1 minus theta. m2 by 1. इस वाले का स्लोप कितना है? 1। हाँ, तो tan थीटा, थीटा की जगह क्या लेंगे? 45. 45. इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। अच्छा, तो मॉड्यूलस लगाना भूलो मत, because that should give us two values, like m minus 1 divided by 1 plus m is equals to 1 भी हो सकता है या -1 भी हो सकता है। I just want to solve this one particular question because एक छोटा सा concept भी यूज हो रहा है। एक मिनट guys। अच्छा, अगर पॉजिटिव स्लोप रहेगा तो सिर्फ 1 ही कंसीडर करेंगे ना। तो 1 और एक सेकंड, m minus 1 by m equals to 1 एक है, m minus 1 by 1 plus m equals to -1 एक केस है। अच्छा, सेकंड केस को सॉल्व कर लेते हैं। m minus 1 equals to -1 minus m, तो इसको सॉल्व करके m का वैल्यू कितना आ रहा है? 0। m का वैल्यू 0 है, तो लाइन का इक्वेशन कैसे ढूंढेंगे? m का वैल्यू 0 है तो So थीटा y is 0 equals to है। c. y minus yes y minus y1 is equals to 0 into x minus x1 और y minus 8 equals 0 या y equal to 8। But I was actually expecting you guys to predict this directly because slope 0 मतलब कैसे रहेगा? Parallel to x axis रहेगा। Parallel to x Yes, axis sir. मतलब y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? ओके, नेक्स्ट पार्ट, दूसरा पार्ट, दूसरा केस भी देखते हैं। दूसरा केस में देयर इज समथिंग न्यू दैट माइट बी हैपनिंग हियर। m-1 इक्वल्स टू क्या होगा यहाँ पे? m plus n. 1 plus m। इसमें सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं सर, Not defined. not Upset defined relation. Now no solution is the common thing which we do. Actually there is something new guys। यहाँ पे तुम लोग ऐसे ये याद रखो, 2x equals to 3x है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 2 is equal to 3। 2x equals to 3x को सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? मतलब do you cancel x and say 2 equal to 3, no solution? Is that the way you do it? सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्या क्या? सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर 2x equal to 3x होगा तो x कैंसिल करेंगे। तो do you guys know that कोई फैक्टर कैंसिल करते हैं तो x equal to 0 करना चाहिए? Yes, sir. ये पता है? ओके, मल्टीप्लिकेशन में कैंसिल करते हैं तो x equal to 0 करना चाहिए। और एक चीज, 2 plus x equals to 3 plus x अगर होगा तो एडिशन में कैंसिल कर रहे हैं, तो एडिशन में कैंसिल कर सकते करके बोलते हैं। एक्चुअली एक नया चीज जो तुम लोगों को समझना चाहिए अब से कि x एडिशन में जब चीज कोई कैंसिल करते हैं तो उसका वैल्यू इंफिनिटी हो सकता है, लाइक 2 plus infinity और 3 plus infinity सेम होगा। तो हम लोग जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं, x एक ऐसा वैल्यू है जो इंफिनिटी नहीं मानते, x रियल नंबर है, इनफाइनाइट नहीं हो सकता करके। लेकिन स्लोप एक स्पेशल चीज है। यहाँ पे m एडिशन में कैंसिल हो रहा है, या m एडिशन में कैंसिल हो रहा है, मतलब m इक्वल्स टू इंफिनिटी जैसा हो सकता है। तो स्लोप एक स्पेशल चीज है जो इंफिनिटी बन सकता है। स्लोप इंफिनिटी मतलब व्हाट डज दैट मीन? And theta 90. Tan 90. हाँ, लाइन इज पैरेलल टू व्हाट? Y axis. Y. लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस कैसे रहते हैं? इक्वेशन ऑफ द लाइन x is x equal equals to to constant, x equals to constant and it is passing through 1,8, so equation of the line हो जाएगा x equals to 1। So yes, there are two lines, x equal to 1 and y equals to 8। Does it feel logical to you also? y equals to x plus 7 लाइन है, इससे 45 डिग्री वाला लाइन बना रहे हैं। ऐसे एक ही लाइन होगा क्या या दो लाइन होंगे? फिर उसके नीचे भी एक आएगा, 2 होंगे। नीचे भी एक आएगा ना, 2 लाइन्स होना चाहिए। थैंक यू, ये समझा क्या एवरीबॉडी? तो देयर आर फ्यू न्यू थिंग्स दैट यू शुड अंडरस्टैंड। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व कैसे कर रहे हैं, थीटा दिया है तो स्लोप कैसे ढूंढना है। अगर और एडिशन में कोई चीज कैंसिल हो रही है तो उसको इंफिनिटी कंसीडर करो एज फार एज दैट क्वांटिटी इज स्लोप। देयर आर ओनली 2-3 थिंग्स इन द होल ऑफ मैथमेटिक्स जिसका वैल्यू इंफिनिटी बन सकता है, वन ऑफ देम इज स्लोप। ओके, वन सेकंड, कॉपी करना है क्या? बताओ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम लोग सैचुरेट हो गए क्या या
पता नहीं सर सर क्या? थीटा इक्वल टू 90 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया? थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्रीज मतलब द लाइन इज वर्टिकल, मतलब एक्स एक्सिस से 90 डिग्रीज पे है। तो फिर सर ये 45 डिग्रीज? नहीं नहीं नहीं, ये 45 डिग्रीज y इक्वल टू एक्स प्लस 7 के साथ 45 डिग्री बना रहा है। अच्छा हाँ सर हाँ। पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं, तुम्हारे चेहरे भी नहीं दिख रहे हैं, बट आई एम डूइंग ओनली टफ सम्स, दैट इज व्हाट आई गेस केवीपी में होता है। तुम्हारा पीएनसी वगैरह कितने लेक्चर में हो गया? लगे ले कितने? तो 4-5 लेक्चर की। 5 लेक्चर लगे। 4-5 लेक्चर की। और कौन से चैप्टर पढ़ लिए तुम लोगों ने? थोड़ा ज्योमेट्री भी पढ़ाया सर ने। ज्योमेट्री मतलब? एरिया ऑफ ट्रायंगल वो सब पढ़ाया हमने। अच्छा अच्छा, ओके ओके। साइन रूल, कॉस रूल। ओह, लाइक आई डोंट नो, लाइक फास्ट चल रहा है जैसे कि मेरा लेक्चर जैसा फास्ट जा रहा है कि नहीं? नहीं वो थोड़ा स्लो जाते थे। स्लो जाते थे ऐसा। मेरा लास्ट में डाला अभी 9 नवंबर या 7 नवंबर को ही है ना तुम्हारा केवीपी भाई? 7. वही, और इतना सारा पोर्शन था कोनिक्स। सर बट कॉनिक्स नहीं है ना? हाँ कोनिक्स नहीं है, स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स है। ओके सर। सर हम डन हो गया लिख के? परम्यूटेशंस छू पाएंगे क्या, मतलब स्टार्ट कर पाएंगे? परम्यूटेशन? स्टार्ट कर पाएंगे? परम्यूटेशंस भी बड़ा चैप्टर है। आई डोंट नो क्या क्या पढ़ा है। मतलब स्टार्ट भी नहीं। लाइक ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या, लाइक देयर आर 6 chocolates, there are 6 chocolates, different chocolates, और हमें 4 स्टूडेंट्स को देना है। हमें 4 स्टूडेंट्स को यस सर, ये कराया था। सर वो ही ना 4C6 वगैरह। सुनो तो ना, तो 6 चॉकलेट है, 4 बच्चों को देना है, और हर बच्चे को कम से कम 1 देना है। हर बच्चे को कम से कम 1 देना है। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें? एंड वी कांट ब्रेक द चॉकलेट एंड अरे मतलब इट्स लाइक a popper, if you break it it become powder। 6 into 5 into 4 into 3। और बाकी 2 चॉकलेट 6 देना है। You have to अच्छा, give all 6 6 देने ही है। 6 की 6 देना है चारों को, और सबको हर बच्चे को 1 तो देना ही, 1 तो देना चाहिए। तुम लोग सोचो, नेक्स्ट क्लास में बताओ। क्वेश्चन समझा ना? यस सर। सबको एक एक दे दो, फिर बाद में 2 बचे हुए 1 को दे दो, वो गलत है। क्यों गलत है समझो। सर फिर से रिपीट करना, कितने हैं टोटल? क्या? सर क्वेश्चन पूरा बताना एक बार। 6 chocolates, 4 children, and you have to distribute all 6 to 4। सबको 1-1 दे दिया, फिर 4 choose 2। सर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्या? नहीं बिल्कुल नहीं, इक्वल हो ही नहीं सकता। हाँ सर वही करना क्या सर प्रॉपर वो एक हाँ, ये लिख के हो गया क्या? Are you guys done reading? Okay. नेक्स्ट वन, इस टाइप के क्वेश्चंस का मैं थोड़े स्किप करवा रहा हूँ, बस अभी क्वेश्चन के फॉर्मेट में नहीं दे रहा, जस्ट तुम लोग जस्ट बताना कि तुम लोग कैसे कर सकते हो। जैसे कि एक लाइन है 2x + 3y + 7 = 0, और एक लाइट रे है, it is starting from the point 7, 3, it comes onto this line and gets reflected,
It comes onto this line and gets reflected. Find the reflected ray. Find the reflected ray. एक सेकंड to be 1 minute. Let me just. ये इंसिडेंट रे का इक्वेशन पता है हमें. We know the equation of the incident ray and we have to find the reflected ray. Solve मत करो, just tell me the thought process. क्या होगा? Incident ray given है और this is the mirror and that is the reflected ray. So हाँ, we can yes. find angles. ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा क्या? हाँ सर, थीटा Yes, sir. Everybody knows this? हाँ सर. yes sir. ये एंगल tan थीटा ढूंढ सकते हो क्या पहले? हाँ यस सर. किसका इसका और इसके बीच का एंगल? मिरर का. Can we find it? yes sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay, you can find it. अच्छा, तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप m मान लेते हैं, तो m और ये भी थीटा सेम है, तो m मिलेगा क्या उससे? हाँ सर मिल जाएगा. हाँ सर. m मिलेगा, तो रिफ्लेक्टेड रे का स्लोप मिल जाएगा. इस स्लोप enough to find the equation of the reflected ray. No sir, point but भी चाहिए. Point- we can point solve and this both simultaneous फिर equation. इंटरसेक्ट कर रहा है ना. Yes, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हो. कैसे ढूंढेंगे? इक्वेट कर देंगे दोनों इक्वेशन. सॉल्व करके. ठीक है, दैट इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चन. और इस टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो क्या? अगर वन सेकेंड थोड़ा सा सिंपलर सा ही करता हूँ. 2x + 3y + 5 = 0 है और एक लाइन है x + y + 7 = 0. अभी यह लाइट इंसिडेंट होके रिफ्रैक्ट हुआ है. it has refracted. It has refracted by another angle of 15 degrees. मतलब refracted by 15 degrees. So we have to find the refracted ray. Question समझ में आया क्या? Everybody, online students? Yes sir. Yes, sir. Okay. कर सकते हो कि नहीं, यही चाहिए मुझे. करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. Yes sir, वैसे ही करेंगे. सर वही करेंगे वापस वो tan थीटा. Yes, वापस tan थीटा से ही कर सकते हैं. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. थोड़ा सोचो, बाकी लोग नॉट वेरी टफ है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा. अच्छा, और एक चीज, एक लाइन पूरे प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? Two parts. In fact, there are 3 types of points. One point which lies on the line, and one set of points which are on the one side, and one set of points which are on the other side. Now, if the equation of this line is ax + by + c = 0, तो on the line वाले सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशन को एग्जैक्टली सेटिस्फाई करेंगे, और एक साइड वालों को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो अगर हमें पॉजिटिव वैल्यू अगर आए तो दूसरे साइड वालों को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो नेगेटिव आते हैं. So that is why that is the one of the way to identify if 2 points lie on the same side or opposite side. For example, like the equation of the line is 2x + y - 7 = 0. Abhi 1, 1 and 3, 3, will they lie on the same side or opposite side? Like 1, 1 put karo इसमें तो क्या आ रहा है वैल्यू? -5. -5. What about 3, 3? 2. तो 3, 3 and 1, 1 will lie on the opposite side. What about 2, 2? 2, 2 किधर lie करेगा? On the side of 1, 1 or 3, 3? 1, 1. 2, 2 will lie on the side of 1, 1. ये समझ आ रहा है क्या क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. हाँ सर. सर सेम What about- साइंस वाले एक साथ रखेंगे. हाँ, what about 2, 3? It will lie on the line. So 2, 3 will lie on the line. So this is one another concept that you should know. Satisfy करेगा तो on the line. Negative सारे एक साइड रहेंगे, पॉजिटिव सारे एक साइड रहेंगे. Easy thing to remember. Okay. One second, board पे कुछ लिखना है तो लिख लो, फिर we'll complete the class for today, guys. सर नहीं. क्या? हाँ सर. Okay. Hello, guys. Have a nice night.
थैंक यू थैंक यू सर सर थैंक यू कांदिवली कब आओगे? यार थर्सडे का ही प्रेडिक्शन है। सर तो पक्का आओगे क्या? पक्का तो मैं वेडनेसडे को बताऊंगा। ओके कल ही बता। सर ओके सर। भाई सर हाँ सर कांदीवली में जो डाउट लेक्चर होने वाला है टीपी भाटिया में, उसमें आप आओगे क्या? कांदिवली में डाउट लेक्चर कब हो रहा है मुझे नहीं पता, मुझे तो नहीं बुलाया। अच्छा सर ठीक है सर। थर्सडे आई थिंक, फ्राइडे समथिंग समवेयर अराउंड। तो थर्सडे को है तो आई थिंक वही थर्सडे को वही प्लान है कि अंधेरी वाला स्किप करके वहां आओ। सर फ्राइडे सर आई थिंक हाँ फ्राइडे को है। सर 11 हाँ फ्राइडे सर। को फ्राइडे को तो मेरे लेक्चर से है। ठीक है चलो डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ। बाय सर थैंक यू सर थैंक यू सर। बाय 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 सर। Thank you, sir. बाय थैंक यू।